Good morning to all. I am the student of HC second SEM and today we will discuss about the topic naphthalene. Naphthalene is a polynuclear hydrocarbon. So we must know about what is polynuclear hydrocarbon. It is aromatic hydrocarbon which containing two or more benzene rings. Now polynuclear hydrocarbon is of two types. In first type, when two benzene rings remain fused together either through a single bond or any other carbonyl group. In first example, we can see that two benzene rings are fused together by a single bond, which is example of diphenyl. And in second case, we see diphenyl methane, in which two benzene rings are fused together by a CH2 group. And second type is when two benzene rings remain fused together at their ortho position, may be angularly or linearly. We can see that here two benzene rings which are joined together at their ortho position. And naphthalene is the first example. It is linearly attached होती है ये. And in anthracene, they are also joined at ortho position but linearly. In phenanthrene, three benzene rings are joined together at their ortho position but they are joined angularly. So in this video we will discuss about the naphthalene, which is a polynuclear hydrocarbon. So first we must know about what is the occurrence of naphthalene. It isolates from the coal tar. It is first isolated by the Alexander Garden in 1819 from the coal tar. And how can we isolate it? By fractional distillation of coal tar, we can obtain naphthalene. And at boiling point of 443 to 503 Kelvin, we can obtain naphthalene. And in small quantity, it can also found in petroleum oil. And for the isolation of naphthalene, we can cool the middle oil fraction to obtain the crude naphthalene, and then we centrifuge the crude naphthalene and washed with the H2SO4 to remove the basic impurities, and then washed with alkaline to remove the acidic impurities. And how can we purify the naphthalene? It can purify by either sublimation or by steam distillation under reduced pressure. And now we will discuss about the synthesis of naphthalene, and its first synthesis is Haworth synthesis, which is the most important synthesis of naphthalene. So what we will do here, when we combine benzene with succinic anhydride, then in presence of anhydrous AlCl3, it gives it is alpha carbon and it is beta carbon. So what is the name of this compound? It will be beta. This is benzene. So overall the name of this group will be benzoyl. So beta benzoyl propionic acid. Okay, and what we will do here, it can reduced by Clemmensen reduction process in presence of ZnHg and HCl. And here we can found this C double bond is reduced to give CH2, and this is CH2, CH2 and COH. This is alpha carbon, beta and gamma. So name of this compound will be gamma phenyl. This is phenyl group, gamma phenyl. 4 कार्बन है इस चेन में, तो गामा फिनाइल ब्यूटायरिक acid. And now this butyric acid undergo ring closure in presence of concentrated H2SO4
वेयर वाटर इज़ रिमूव्ड। सो रिंग क्लोजर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा टेट्रालोन मिलेगा, जो कि है अल्फा टेट्रालोन। And now it again undergo reduction in presence of ZnHg and HCl to give tetraline. And now this tetraline undergo dehydrogenation. 2H2 molecules remove करेंगे हम in presence of PDC at 573 Kelvin. We obtain naphthalene. So this is the first preparation of naphthalene by the Haworth synthesis, and our second preparation is by Diels-Alder reaction. In this reaction we take cyclohexene and 1,3-butadiene. So when it react, this bond will shift there, and this will shift here, and this will shift here. So what is formed? This compound will be formed, and now this will undergo HNU की प्रेजेंस में और 2N ब्रोमोसक्सिनिल अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसमें ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे दोनों में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। एंड नाउ हेयर 2HBr इज रिमूव्ड by the dehydrohallucination reaction. So what will obtain? So here we obtain this, and now in presence of PDC at 573 Kelvin it will undergo dehydrogenation, H2 molecules remove होंगे, and it will form naphthalene. So this is the second preparation of naphthalene, and now we will discuss about the nomenclature of naphthalene, which is very important for us. This is naphthalene. So in common nomenclature we can write this is alpha position, this is beta, this also beta, this is alpha, and in second ring it is alpha carbon, beta, beta and alpha. Or when in numbering, how we will do the numbering of naphthalene? This first, second, third, fourth and fifth carbon is this, sixth, seventh, eighth, this is ninth and this is 10th carbon. Let us take the example of naphthalene, which is यहाँ पे हमने Cl लगा दिया ग्रुप, तो इसको क्या नेम देंगे? अगर हम अल्फ़ा बीटा के नेम्स में दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा पोजीशन, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्लोरो नेफ्थलीन। और अगर हम
बात करें नंबरिंग के बेस पे, अगर हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन, तो ये है 1 क्लोरो नेफेथलीन। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो अगर इसमें यहाँ पे OH ग्रुप लगाएंगे हम, तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा नेफेथोल या फिर 1 नेफेथोल। ओके, so this all about the nomenclature of naphthalene, and now we will discuss about the physical property of naphthalene. It is a crystallized and colorless shining plate. It means इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो कलरलेस होंगे एंड प्लेट मतलब शाइनिंग प्लेट्स के रूप में ये क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 491 होता है केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज़ 353 केल्विन। एंड नेफ्थलीन है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड बेंजीन के अंदर। इट इज़ हाईली वोलेटाइल्स एंड सब्लाइम्स रेडिली ऑन हीटिंग। इट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म के अंदर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रेडिली जब आप इसको हीट करते हैं। और इसकी जो ऑर्डर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक मोथ बॉल ऑर्डर होती है। मोथ बॉल मतलब जो हमें कपूर की जो स्मेल आती है, सेम उसकी तरह की इसकी जो ऑर्डर है वो हमें मिलती है। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन की। तो इसमें अगर हम देखें तो ये केमिकल रिएक्शन क्यों शो करता है नेफ्थलीन, क्योंकि जो नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है इसकी, ये 46 किलोजूल पर मोल होती है। और अगर हम 2 बेंजीन रिंग की बात करें तो जो 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं उनकी जो कंबाइंड रेजोनेंस एनर्जी होगी, एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36, तो दूसरे की भी 36, तो टोटल कितनी हुई 72 किलोजूल पर मोल। तो जो नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कम होती है 2 बेंजीन्स की जब हम रेजोनेंस एनर्जी से कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेफ्थलीन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है देन द बेंजीन से, जिसकी वजह से ये कुछ केमिकल रिएक्शन शो करता है नेफ्थलीन। और इसमें जो पहला केमिकल रिएक्शन शो करेगा वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है नेफ्थलीन। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इस नेफ्थलीन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्या दे देगा हमारे पास, ये अल्फ़ा पोजीशन पे ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे। अगर हम अल्फ़ा केस लेके चलो तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये। और अगर हम सेकंड केस लें जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा, ये है बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ओके, सो अगर हम मैकेनिज्म देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है वो डिसोसिएट होंगे टू गिव्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, एंड नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल टेक दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन दैट इज नेफ्थलीन, फ्रॉम द नेफ्थलीन। और यहाँ पे हमने अल्फ़ा अटैक बता रखा है, ये अल्फ़ा अटैक है यहाँ पे। अल्फ़ा अटैक तो यहाँ पोजीशन पे लगेगा, अल्फ़ा अटैक तो जब अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक करेगा ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर जब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत सारी शो करता है। और अगर हम बीटा अटैक की बात करें, ये हमने स्टेप थर्ड यहाँ पे शो कर दिया कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव में, एंड फिर ये H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके H न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। और बीटा अटैक की बात करें तो ये बीटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। जब ये बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमें बहुत सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलती हैं, और फिर ये सेम हमने प्रोसीजर बताया है जैसे हमने अल्फ़ा अटैक में बताया था। तो हमें अब प्रेफरेबल कौन सा है दोनों में से ज़्यादा, तो हम देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा अटैक है उसमें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल रही हैं
उनमें 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 बेंजीन रिंग है यहाँ पे, लेकिन बीटा टैग के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में कंप्लीट बेंजीन रिंग है। तो ज़्यादा स्टेबल हम इसको मानते हैं अल्फ़ा टैग को, तो इसलिए हम अल्फ़ा टैग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे देन बीटा टैग से। सो नाउ वी विल सी द केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। इन हैलोजिनेशन नेफेथलीन जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये हमारे पास क्या देगा, इसका नाम क्या होगा, अल्फ़ा क्लोरो नेफेथलीन। और अगर हम Br2 का अटैक करवाते हैं इसके ऊपर CCl4 के प्रेजेंस में, देन इट विल गिव Br, that is 1-bromo नेफेथलीन। सो ये तो हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ नेफेथलीन। अब इसमें ये जो 1-bromo नेफेथलीन है वो यूज्ड, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में यूज़ करते हैं इसको। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, then it will give Grignard reagent, that is MgBr. And now this Grignard reagent will be useful for the formation of naphthoic acid. It can convert in presence of dry ice and H2O. So it forms 1-naphthoic acid, which is COH. ये हो गया 1-naphthoic acid। ये नेफेथलीन ग्रुप है, यहाँ पे ये COH है तो यहाँ पे हमने OH लगा दिया है और फर्स्ट पोजीशन पर अटैच हो रहा है तो इसका नाम 1-naphthoic acid हो जाएगा। ओके। और जो हमारे पास सेकंड जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, नाइट्रेशन। नेफेथलीन है वो नाइट्रेशन रिएक्शन शो करता है। तो जब हम नेफेथलीन की रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4, then it will give इसका नाम क्या हो गया, 1-nitro नेफेथलीन। ओके। इन और टेम्परेचर जो रेंज होगा इसमें होगा 323 से 333 केल्विन। और अब थर्ड जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। जब इस नेफेथलीन की रिएक्शन हम करवाएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर रेंज इसमें 353 रखेंगे तब तो जो SO3H ग्रुप है सल्फोनेशन करवाने के बाद वो अल्फ़ा पोजीशन पे लगेगा। और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 433 केल्विन रखते हैं तो ये जो है ये बीटा पोजीशन के ऊपर लगेगा। यहाँ पे बीटा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नेफेथलीन सल्फोनिक एसिड। और फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है तो 1-नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड और ये 2-नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है। और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं एट 433 केल्विन के ऊपर। और अब अगर इनमें से हम बात करें कि हम कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इनमें से जो प्रेफरेबल होगा वो क्या होगा,
इसमें से जो बीटा पोजीशन पे लग रहा है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा देन अल्फ़ा से, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है देन अल्फ़ा अटैक से, सो इट विल बी मोर स्टेबल। अब जो तुम्हारे पास सेकेंड लास्ट है वो क्या है, रिडक्शन। नेफेथलीन है जो रिडक्शन रिएक्शन भी शो करता है। जब इस नेफेथलीन की हम रिडक्शन करवाते हैं, मतलब रिडक्शन क्या होगा कि हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे हम, तो यहाँ पे जब हम 2 हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे और टेम्परेचर रेंज हम यहाँ पे लेंगे 351 केल्विन एंड प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड सोडियम की प्रेजेंस में ये हमारे पास क्या देगा, तो ये ग्रुप दे देगा यहाँ पे। और जब हम इसका 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ आइसो C5H11OH एंड Na की प्रेजेंस में एट 403 केल्विन के ऊपर, देन इट विल गिव्स दिस। सो ये है इसका रिडक्शन का कंप्लीट प्रोसेस। अब ये थर्ड जो है हमारे पास वो ऑक्सीडेशन। फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हेलोजिनेशन शो करता है, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिर हमने रिडक्शन पढ़ा। और जो लास्ट इसकी रिएक्शन है नेफेथलीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद, अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है तो हम KMnO4 की प्रेजेंस पे करवाएंगे और H2SO4 की प्रेजेंस में, एंड इट विल गिव थैलिक एसिड। दिस इज़ थैलिक एसिड। तो ये जो है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे मिला है हमें। और जब हम इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस नेफेथलीन का, तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, CrO3 एंड CH3COH की प्रेजेंस में होगा एट 298 केल्विन के ऊपर। तो क्या बनेगा हमारे पास,